Good morning, students. Now, the topic of today's discussion is the remaining part of Unit 2, that is, various systems of classification of crude drugs we are discussing in previous lecture. So, we are going to complete the remaining lecture and the remaining classification in this video. So, starting with the topic. The fifth system of classification is chemical classification. In previous lecture, we are discussing about alphabetical classification, taxonomical, morphological, and pharmacological classification of crude drugs. Now we are going to discuss about the chemical classification of crude drugs. Now in this, the crude drugs are divided into different groups according to the chemical nature of their most important constituent present in the drug to which the pharmacological therapeutic activity of drug is attributed. Suppose आपका कोई भी क्रूड ड्रग है, उसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से आपकी एक्टिविटी आती है उसको हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं. तो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम जो क्रूड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ their chemical constituent present in the drug or on the basis of therapeutic activity of that particular constituent. ठीक है. Advantages of this system is chemical constituents are known, medicinal uses are known. Disadvantages are drugs of different origin are grouped under similar chemical titles. This type of classification makes no proper placement of drugs containing two different types of chemicals. इस classification में प्रॉपर हम प्लेसमेंट नहीं करते हैं ड्रग्स का जो कि दो डिफरेंट टाइप के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं. ठीक है. एग्जाम्पल, सर्टेन ड्रग्स आर फाउंड टू कंटेन अल्कलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स लाइक सिनकोना, फिक्स्ड ऑयल एंड वोलेटाइल ऑयल एंड नटमेग of equal importance together and hence it is difficult to categorize them properly. मतलब हम क्या करते हैं, एक ही ड्रग के अंदर, ठीक है, हम केमिकल कॉन्स्टेंट के बेस पे हम क्लासीफाई कर देते हैं, पर एक ही ड्रग के अंदर आपके दो तरीके के केमिकल कॉन्स्टेंट भी पाए जाते हैं. जैसे कि एक ही ड्रग में अल्कलॉइड भी होता है, ग्लाइकोसाइड भी होता है, तो उनका कैटेगराइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. अब एग्जाम्पल हैं इसके केमिकल कॉन्स्टेंट के बेस पे जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ड्रग्स का कैसे करेंगे. फर्स्ट कैटेगरी इज़ अल्कलॉइडल कैटेगरी. ठीक है. अल्कलॉइडल ड्रग्स में आपकी आएंगी धतूरा, वसाका, विनका, लोबेलिया. ग्लाइकोसाइडल कैटेगरी में आएगा किस्केरा, सेना, डिजिटालिस. टेनेंस में कटेचू, मायरोबालान एंड अशोका. वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स क्लोव, यूकेलिप्टस एंड सिनेमन. लिपिड्स कैस्टर ऑयल, बीजवैक्स, एराकिस ऑयल. Carbohydrates and derived products acacia, agar, honey, linseed, tragacanth and starch. Resins colophony, benzoin. Vitamins and hormones yeast, shark liver oil, insulin. Proteins and enzymes gelatin and papain. ठीक है. Advantages of this system हमने अभी पढ़ा था. Chemical constituents are known, medicinal uses are known. Disadvantages, drugs of different origins are grouped together under similar chemical titles. This type of classification makes no proper placement of drugs containing two different types of chemicals. Now, chemotaxonomical classification is the next system of classification of drugs. In this system of classification हम classify करते हैं crude drugs को on the basis of chemical nature and on the basis of their taxonomy. In this system of classification, the equal importance is given for taxonomical status and chemical constituents too. There are certain types of chemical constituents which are characteristics of certain classes of plants. ठीक है. कई बार क्या होता है, डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टेंट होते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सर्टेन प्लांट्स की कैटेगरी के लिए. द कैरेक्टर मोस्ट ऑफन स्टडीड इन कीमोटैक्सोनॉमी आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस सच एज अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स एट्सेट्रा. DNA hybridization, amino acid sequencing in proteins and serotaxonomy are also gaining significance in this method of classification. ये जो method of classification है उसमें जो main significance मिलती है वो कौन सी कैटेगरी को मिलती है, कौन सी कैटेगरी के प्रोसेसेस को मिलती है, जैसे कि DNA हाइब्रिडाइजेशन हो गया, अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग हो गया, सेरोटैक्सोनॉमी एट्सेट्रा. एग्जाम्पल, ट्रोपेन अल्कलॉइड जनरली अकर इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी. जो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स है बेसिकली वो अकर होते हैं कौन सी फैमिली के अंडर, सोलेनेसी फैमिली के अंडर. नेक्स्ट, वोलेटाइल ऑयल्स अकर इन द मेंबर्स ऑफ अम्बलिफेरी एंड र्यूटेसी. नाउ नेक्स्ट इज
आपको क्या पढ़ना है, प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट भी बोल सकते हैं इसको, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है। जब भी आप कीमोटेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें आपको एक चीज़ हमेशा रिमेंबर करनी है और याद रखनी है कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं? These are the compounds which are basically involved in the fundamental metabolic pathways. जो भी आपके metabolic processes होते हैं plants के अंदर, ठीक है, वो उसमें जो directly involve होते हैं metabolites और compounds, उन्हें primary metabolites बोलते हैं. Most of the primary metabolites are of universal occurrence and utilized by the plant itself for growth and development. प्लांट प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं प्लांट के, वो यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, और वो यूटिलाइज करे जाते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लांट के ही द्वारा. दीज कंपाउंड्स आर यूबिक्विटस इन नेचर एंड हैंस प्ले लिटिल रोल इन कीमोटेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन, ठीक है. Secondary metabolites are the compounds that usually perform non-essential functions in plants. अब जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंदर डिफरेंस है वो किस बेस पे है कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इटसेल्फ में. और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है, वो कंपाउंड हैं जो यूजुअली नॉन एसेंशियल हैं, जिसकी नॉन एसेंशियल फंक्शंस है प्लांट्स के लिए. दे आर यूज फॉर प्रोटेक्शन एंड डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर्स एंड पैथोजेंस. इनका बेसिक यूज़ क्या है, ये पैथोजेंस के अगेंस्ट डिफेंड करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं. These compounds are of restricted occurrence and hence very useful for chemotaxonomic classification. Some of the major group of secondary metabolites includes glycoside, alkaloid, volatile oil, flavonoid, plant phenols and terpenoids. ये सब क्या है, ये सब आपके secondary metabolites. Now serotaxonomical classification is the last system of classification of crude drugs. ये क्या होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा what is serology. सबसे पहले पढ़ेंगे आप सेरोलॉजी क्या है. सेरोलॉजी इज डिफाइंड एज दैट पोर्शन ऑफ बायोलॉजी विच इज़ कंसर्न विद द नेचर एंड इंटरेक्शंस ऑफ एंटीजेनिक मटेरियल एंड एंटीबॉडीज़, ठीक है. सेरोलॉजी क्या है, जो कि एक पोर्शन है बायोलॉजी का जो कि कंसर्न है नेचर और इंटरेक्शंस ऑफ एंटीजेनिक मटेरियल एंड एंटीबॉडीज़ के साथ. इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीसेरम. इसमें हम स्टडी करते हैं ओरिजिन की और प्रॉपर्टीज़ की एंटीसेरा की. व्हेन फॉरेन सेल्स और पार्टिकल्स आर इंट्रोड्यूस इनटू एन ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा ब्लड के अंदर, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एंटीसेरम. द सब्सटेंस कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन एंटीबॉडी. अब जो वो एंटीबॉडी बनाने के लिए जो सब्सटेंसेस कैपेबल होते हैं उनको कहते हैं एंटीजन. And the highly specific protein molecule produced by plasma cells in the immune system in response to the antigen is called antibody. जो highly specific protein molecule होता है जो कि produce किया जाता है by plasma cells in the immune system in response to an antigen. एक एंटीजन के रिस्पॉन्स में इम्यून सिस्टम के द्वारा प्लाज्मा सेल्स से बना हुआ जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है उसे एंटीबॉडी बोलते हैं. अब फाइटोसेरोलॉजी क्या है, विच डील्स विद द इम्यूनोकेमिकल रिएक्शंस बिटवीन सेरम एंटीबॉडीज एंड एंटीजन. It has also established itself as a valid method in systematics because it helps to detect homologous proteins. Basically phytoserology डिटेक्शन ऑफ होमोलोगस प्रोटीन्स के लिए यूज़ होता है. इट यूजेस द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीसेरा प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स अगेंस्ट प्लांट प्रोटीन्स एज कैरेक्टर्स टू असेस प्लांट रिलेशनशिप्स. Serotaxonomy developed and became very popular in Germany, which has been an active center since the beginning of this century. Serotaxonomy क्या है, एक बार और इसकी डेफिनेशन हम ध्यान से पढ़ेंगे. The classification of very similar plants by means of differences in the proteins they contain. Classification करते हैं हम plants का on the basis of differences in proteins जो कि उसके अंदर present होता है. The technique is based on the highly specific relationship between antigen and antibody produced in response to them. Protein extracted from plant is injected into the blood of an animal. जो भी प्रोटीन हम एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे प्लांट में से और इंजेक्ट करेंगे ब्लड में एनिमल के, where it behaves as an antigen. After an interval for the production of antibodies, a blood sample is taken. जब एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट बननी स्टार्ट हो जाएंगी तब हम ब्लड सैंपल लेंगे.
This can be used to compare the first plant protein with extracts taken from other plants. The study of antigen antibody reaction is called serology. Basically जो serology है वो किस चीज़ की study है? It is the study of antigen and antibody reactions. The substance capable of stimulating the formation of an antibody is antigen. A specific protein molecule produced by plasma cells in the immune system is antibody. The antibody combine chemically with specific antigen and this combination elevates an immune response. जब antigen और antibody combine होते हैं तो ये generate करते हैं एक specific immune response. The application of serology is solving taxonomical problems is called serotaxonomy. जो एप्लीकेशन है सेरोलॉजी की वो है कि ये सॉल्व करते हैं टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जिसे हम कहते हैं सेरोटैक्सोनॉमी. अब प्रोसेस क्या है सेरोटैक्सोनॉमी का? द प्रोसेस ऑफ सेरोटैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. द प्रोटीन एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्लांट ओरिजिन दैट इज द एंटीजन. सबसे पहले एंटीजन होना चाहिए. सेकेंड, द एंटीजन इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल टू फॉर्म एंटीबॉडीज़. अब वो जो एंटीजन है जो एक्सट्रैक्ट आउट करा है हमने प्लांट में से उसे हम एक एनिमल में क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे उसकी ब्लड स्ट्रीम में जब फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबॉडीज़. अब जब एक्सपेरिमेंटल एनिमल प्रोड्यूस करेगा स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन तब क्या होगा? द सीरम विद एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंटीसीरम. तो जो सीरम होगा उस एनिमल का विद एंटीबॉडीज़ अगर उसमें प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जो सीरम होगा उसमें जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी उसको बोलेंगे एंटीसीरम. एंटीसीरम इज मेड टू रिएक्ट इन विट्रो विद एंटीजेनिक प्रोटीन एज वेल एज प्रोटीन्स ऑफ अदर टेक्सा. जो एंटीसीरम होता है वो बना है इन विट्रो रिएक्शन के लिए एंटीजेनिक प्रोटीन्स के साथ whose affinities are to be determined. The amount of precipitation shows the degree of homology. For example, to know the closeness of the taxon A with B, C, D, E, the proteins from A are extracted and are injected into the experimental animal rabbit or mice. The experimental animal in return produces antibodies. These antibodies are extracted from the blood of the experimental animal in the form of antiserum. अब वो जो एंटीबॉडीज़ आपने एंटीजन आ गया, एंटीबॉडीज़ बन गई. अब उस ब्लड में से जब हमने एंटीबॉडी ली तो उसको क्या बोलेंगे? एंटीसेरम. When the antiserum is allowed to react with the original protein extract from A, complete coagulation takes place. जैसे ही वो एंटीसेरम रिएक्ट करेगा एंटीजन के साथ तो वो complete coagulation हो जाएगा. When this antiserum is allowed to react with the protein extract from other taxa, B, C, D, E, the degree of coagulation varies. ठीक है, हर एक के साथ हर एक प्रोटीन एक्सट्रैक्ट के साथ डिग्री ऑफ कोएगुलेशन वेरी करेगा. कोएगुलेशन क्या होता है? ब्लड का जमना. द डिग्रीज ऑफ कोएगुलेशन आर कंपेयर टू नो द क्लोजनेस ऑफ द टेक्सा. मोर द डिग्री ऑफ कोएगुलेशन मोर इज द क्लोजनेस. जितना ज़्यादा कोएगुलेशन होगा उतनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी. इंपॉर्टेंस क्या है टेक्सोनॉमी की, सेरोटेक्सोनॉमी की? In the year 1983, Fair Brothers used serological data in classification of orders and assignment of families in the Apiales, Fragiles, Magnoliales, Juglales, and Rubiales Ranunculaceae families. Again in 1959, Fair Brothers and Johnson separated 6 species of bromus on the basis of serological data. On the basis of the serotaxonomical studies, Fair Brothers and Johnson showed that genera Magnolia and Michaelia shows closed affinity with Magnoliaceae. जो genera genus Magnolia और Michaelia है वो affinity close show कर रहे हैं with the family Magnoliaceae. Simon in the year 1971 demonstrated the close relationship between Nymphaceae and Nilambonaceae based on the serological data. Close applied serotaxonomical data in the classification of Leguminosae family. Thank you. This is this small topic of classification of crude drugs. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं. सेरोटेक्सोनॉमी में ये आपको बेसिकली जो एग्जांपल्स वगैरह मैंने दिए हैं ये फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पज़ है. अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको सिर्फ इंट्रो लिखना है. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप लिख सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.